اس کا دوسرا باب پہلی 14 آیات۔ ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگستس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب کرنیلیوس سوریا کا حاکم تھا، تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھوانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منقوہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے غلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے۔ اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ایک بشپ صاحب کرسمس کی چھٹیاں کے لیے وہ اپنے خاندان کے پاس گیا، اور وہاں اس کی بھتیجی جو تقریباً 9-10 سال کی تھی، ان کے ساتھ اس کا کافی لگاؤ تھا، اور جب کرسمس کے ناطے سے سارے تحفوں کے بارے میں ذکر ہو رہی تھی تو اس بشپ صاحب نے اپنے بھتیجے سے یہ سوال پوچھا کہ ان تمام تحفوں میں آپ کے لیے سب سے اہم تحفہ کون سا ہوگا جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی دے گی؟ اس بچی نے صرف 2 سیکنڈ لیے اور اس نے جواب دیا، یسوع مسیح، کہ اگر اس کو یسوع مسیح کا تحفہ مل جائے تو وہ سب سے زیادہ خوشی اس کو ملے گی۔ بشپ صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ بچی خدا کے بہت قریب تھی، اور اس نے پھر دوسرا سوال ان سے پوچھا، اچھا یہ مجھے بتاؤ، اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ دنیا بھر کو ایک تحفہ دے، آپ دنیا بھر کے لیے کون سا تحفہ دیں گے؟ اور دوبارہ صرف 2 سیکنڈ لگا اور اس بچی نے جواب دیا، امن و سلامتی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بچی کی بات پر غور کرنا ہے، کیونکہ کرسمس کا وقت تحفوں کا وقت ہے۔ آپ بھی میں بھی بہت سے تحفے حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج یسوع اس دنیا میں آ کے، اس دنیا میں پیدا ہو کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ اس کی عید ولادت ہے، اس کا سالگرہ ہے، ہمیں تحفہ دینا ہے، لیکن خداوند یسوع خود
अपनी जिंदगी का तोहफा हमें पेश करता है और इस तोहफे से यानी यस्सु अल मसीह के वसीले से अमन और सलामती हमें दी जाती है। हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में अमन और सलामती की कितनी ज़रूरत और दरकार है। पूरी दुनिया को देखें, हमारे मुल्क को देखें, वो बुनियादी दुआ जो हमारे दिल से उभरती है, ए खुदावंद हमें अमन और सलामती अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस वो वक्त है जब हम याद करते हैं कि खुदा ने हमें एक कीमती तोहफा दिया है, उसका अपना बेटा। यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत में हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, जानते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि जिंदगी पाए। आज ये मौजज़ा हमारे आंखों के सामने, आंखों के दरमियान जाहिर होता है कि खुदा बाप अपने बेटे हमारे दरमियान बेचता है। लेकिन ये बेटा हमें क्या सिखाता है? चटनी में पड़ा हुआ ये मासूम बच्चा हमें क्या पैगाम देना चाहता है? मेरे अज़ीज़ों, आज आपके सामने मैं 3 सिर्फ पैगाम पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहला पैगाम मुकद्दस इरेनियस, जिसने तकरीबन साल 200 में ये एक कहावत कही जो आज तक हमें हैरान कर देती है। उसने कहा कि खुदा का बेटा इंसान बना ताकि इंसान इलाही खुदा के फर्जंद बने। दोबारा ज़रा हम गौर करते हैं, खुदा का बेटा इंसान बना ताकि इंसान खुदा के फर्जंद बने, ताकि इंसान इलाही बने। मेरे अज़ीज़ों, कुछ साल पहले मैं एनिमल चैनल, वाइल्ड लाइफ चैनल देख रहा था और उस डॉक्यूमेंट्री में एक सवाल पूछा गया कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है। जवाब सुनने से पहले मेरे जहन में ये था, हो सकता है लायन हो, शेर हो, टाइगर हो, लेकिन उसका जवाब ये था कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। कुछ साल पहले कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के साथ बहुत जुल्म हुआ। उनके लोग बड़े बेदर्दी से कत्ल किए गए थे दहशतगर्दों ने, और हज़ारा कम्युनिटी ने अपने अजीज़ रिश्तेदार की लाशें रोड पर रखकर उन्होंने एहतजाज किया। और उस वक्त बड़े रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह गए और उस हज़ारा कम्युनिटी की एक लड़की ने खूब सवाल, सोचने वाली सवाल पूरे पाकिस्तान के सामने पेश की। उसने कहा, एक जानवर भी अपने दूसरे जानवरों के साथ ये सलूक नहीं करते हैं जो हमारे साथ हुआ है, कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करता जो उनके साथ हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि वाकई में मेरे अजीज़ों, हम इंसान सबसे खतरनाक जानवर हैं। लेकिन आज यीशु इंसानियत अपनाता है, खुदा इंसान बनता है। क्यों? वो इसलिए ताकि हमें दिखा सके, हम इंसानों को बता सके कि देखो, इंसानियत का दर्जा
बुलंद भी है। हमने यकीनन इंसानियत का दर्जा गिरा दिया है, लेकिन वो मासूम बच्चा चटनी में हमें सिखाता है कि इंसानियत का दर्जा ऊपर बुलंदी इलाही खुदा की तरफ जाती है। और मेरे अजीजों, ये मासूम बच्चा हमें सिखाती है कि हम अपनी इंसानियत को तब्दील करें, कि दूसरों को दुख, तकलीफ, परेशानी, मौत देने के बजाय जिस तरह यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी और कसरत से जिंदगी देने आया हूं, हमें भी ऐसी इंसानियत को कबूल करें। क्योंकि जब हम इस तरह की इंसानियत जो यीशु हमें सिखाता है कबूल करते हैं, तो फिर हम इलाही बन जाते हैं। दूसरा पैगाम, और वो इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। आयत ये है, देखो एक कंवारी हामला होगी और उससे एक बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। आज अगर आपको मौका मिले, उस चटनी के पास जाके यस्सु पर गौर करे। वो नन्हा बच्चा जो मासूम, बेबस, हमें बताया जाता है खुदा हमारे साथ है। मुकद्दस विंसेंट डी पॉल जो गरीबों से बेहद प्यार करता था, वो ये कहता था कि अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो, अगर तुम खुदा को छूना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ। बस ये जुमला था, अगर तुम खुदा से मिलना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ। और ये मासूम बच्चा यीशु आज हमें सिखाता है कि वो हेरोदेस की महल, वो अमीर शहजादों के घर, यहां तक के सराय में भी उनके लिए जगह नहीं थी। सराय में भी, होटल में भी उनके लिए जगह नहीं थी। और नन्हा बच्चा यीशु कहां हम पाते हैं? गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के दरमियान एक ऐसी जगह जहां सिर्फ गरीब, बेबस लोग रहते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें भी दावत दी जाती है कि यीशु को बड़े महलों में ना ढूंढे, क्योंकि यीशु वहां पे नहीं मिलेगा। अगर यीशु की हकीकी तजुर्बा आप करना चाहते हैं, यीशु को छूना चाहते हैं, गरीबों के पास, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के पास जाओ, वहां पर तुम्हें यीशु मिलेगा। और चटनी की कहानी यही है, खुदा हमारे साथ है, उसका तजुर्बा। यीशु कहता है हेरोदेस के महल अमीरों के घरों में नहीं होगा। मैं अगर पैदा हुआ, मैं अगर तुम्हें मिलूंगा गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के दरमियान। और मेरे अजीजों, तीसरा पैगाम कि खुदावंद हमारे दरमियान आता है हमें खुशी देने के लिए। क्रिसमस का वक्त खुशी का वक्त है और ये फैलती है। आप सिर्फ बच्चों को देखो कि उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है जब उनको तोहफे मिलते हैं। क्रिसमस का वक्त आता है, खुशी का वक्त है। लेकिन मेरे अजीजों, अगरचे निजात दहिंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह चरनी में आकर हमें खुशी देता है, शादमानी देता है, हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि कौन सी खुशी, कौन सी शादमानी। क्योंकि आजकल के दौर में खुशी और शादमानी अलग अलग किस्म के हैं। दो किस्म के मैं आपको बता सकता हूं। एक पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल खुशी, इनफरादी। इसको अक्सर दफा हम कहते हैं मजा, अयाशी। ये है ऐसी खुशी जो सिर्फ मुझे
खुश कर देती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह का आना इस खुशी की तरफ नहीं जाती है। ये एक अलग किस्म की खुशी है जो दूसरों को खुश करने में हमें मिलती है। जब हम कुछ देते हैं तो फिर हमें खुशी मिलती है। मिसाल के तौर पर चरवाहे जब वो चरनी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने जानवरों का नजराना पेश किया। जब मजूसी वो चरनी तक पहुंचे तो उन्होंने अपने तोहफे नजर की। जब फरिश्ते उस खूबसूरत मंजर के पास थे तो उन्होंने अपनी आवाज़ का नजराना, गीतों का नजराना पेश किया और उससे खुशी बढ़ती है। कुछ दिन पहले हमारे कारितास के डायसीजन डायरेक्टर मेरे दफ्तर में आके उन्होंने एक तजुर्बा बताया जो हुआ था। उन्होंने क्रिसमस के नाते से भट्टा मजदूर के बच्चों को जमा किया, लाहौर से इधर लेकर आए, लाहौर डाइसी से, कुछ शेखपुरा से, कुछ इधर उधर के इलाके से, और यहाँ पर लेके आए लाहौर में। फिर पार्क में, मेरे ख्याल में मीनार पाकिस्तान की तरफ लेके गए और वहाँ को बच्चों को खूब एंजॉय करने दिया। और ये डायसीजन डायरेक्टर ने मुझे ये बात पेश की। उसने कहा, बिशप जी, उन बच्चों को इतना खुश, झूमते हुए, खेलते हुए, भागते हुए देखकर, उनकी खुशी देखकर मेरे दिल, हमारे पूरे स्टाफ के दिलों में खुशी आई। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कहते हैं कि नन्हा बच्चा यस्सु हमें खुशी सलामती देने के लिए आता है, वो इस तरह की खुशी जो हम कुर्बानी करते हैं और उस कुर्बानी का सिला खुशी में हम पाते हैं। और यीशु दिखाता है कि यही बच्चा जो चरनी में पड़ा है वो अपनी जान का नजराना करेगा ताकि हम जिंदगी बल्कि कसरत से जिंदगी हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, यही है क्रिसमस की कहानी कि अगर हम आज यस्सु को देखना चाहते हैं, यस्सु को अपने दिलों में पहचानना चाहते हैं, तो हमें यस्सु को सबसे पहले देखना है गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों में, उधर यस्सु को पहचानना है। और जब हम उनकी खिदमत करेंगे तो यकीनन खुदावंद हमें भी उसकी खुशी और शादमानी हमारे दिलों में देगा। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।